اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن. یہ جو ہماری جو شیٹ ہے آج کی، یہ ہماری بیسک عربی کی شیٹ نمبر 4 ہے. انشاءاللہ آج جو پڑھیں گے ہم، یہ ویڈیو نمبر 4 ہے. اس کے اندر ہم انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم نے اس کے پہلے والی جو ویڈیو تھا اس کے اندر کچھ چیزیں پڑھی تھی جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. مجھے ایک مرتبہ سرسری طور پر 3-4 منٹ کے اندر مجھے اس کا ریویژن کروا دیتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ. پھر آگے بڑھتے ہیں شیٹ نمبر 4 پر یا ویڈیو نمبر 4 کے کانٹینٹ پہ، اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے دیکھیے گا، مجھے بتائیے اگر آپ کو یاد ہو چکا ہے تو. آپ کے سامنے ایک جملہ ہے، میں گھر میں ہوں. میں گھر میں ہوں، اس کو بتائیے ذرا، ذہن سے بول کر دیکھیے عربی اس کی، تاکہ ریویژن ہو جائے آپ کا. میں گھر میں ہوں. انا فی البیت، کیا کہیں گے ہم؟ انا فی البیت. میں کے لیے ہم نے پڑھا ہوا ہے فی. فی فی میں گھر میں، گھر کے لیے بیت. میں گھر میں ہوں انا فی البیت. میں گھر میں ہوں انا فی البیت. اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے ہمارے پاس جو ہے نا دوسرا جملہ تھا، خالد آفس میں ہے. اس کی عربی بول کر دیکھ لیجئے جلدی سے. خالد آفس میں ہے. خالد فی المکتب. خالد فی المکتب. نمبر 3 کا جملہ بول کر دیکھیے اور پھر جو ہے نا ہم انشاءاللہ جلدی ہی. مریض اسپتال میں ہے. مریض اسپتال میں ہے. المریض فی المستشفى. المریض فی المستشفى. المریض فی المستشفى. اس کے بعد جو ہے نمبر 4 کا جملہ ہے ہمارے پاس، اس کی عربی بتا دیجئے فوراً. حامد دکان میں ہے. حامد دکان میں ہے. حامد فی الدکان یا حامد فی المحل. حامد فی الدکان یا حامد فی المحل. اس کے بعد جو ہے نمبر 5 کا جملہ ہے، اس کو بتائیے ذرا. فاطمہ کچن میں ہے. فاطمہ فی المطبخ. فاطمہ فی المطبخ. فاطمہ فی المطبخ. نمبر 6 کا جملہ، پانی فریج میں ہے. پانی فریج میں ہے. الماء فی الثلاجہ. فریج کی عربی میں بتائی تھی ثلاجہ. ثلاجہ. الماء فی الثلاجہ. الماء فی الثلاجہ. نمبر 7 کا جملہ ہے، چابی گاڑی میں ہے. بتائیے اس کا جملہ، اس کی عربی فوراً. المفتاح فی السیارہ. المفتاح فی السیارہ. المفتاح فی السیارہ. نمبر 8 کا جملہ ہے، فائل ٹیبل پر ہے. اس کی عربی بتائیے. الملف علی الملف علی الطاولہ. الملف علی الطاولہ. الملف علی الطاولہ. نمبر 9 کا جملہ ہے، گھڑی دیوار پر ہے. الساعہ علی الجدار. دیوار کے لیے لفظ آپ نے پڑھا تھا جدار. پر کے لیے چیزیں ہیں ہم نے پڑھی تھی علی. فی اور علی پڑھا تھا اس سے پہلے، اسی کا ریویژن ہے. تو پر کے لیے ہم نے پڑھا تھا علی، اور دیوار کی عربی پڑھی تھی ہم نے جدار. گھڑی کی عربی پڑھی تھی ہم نے ساعہ. الساعہ علی الجدار. الساعۃ علی الجدار. الساعۃ علی الجدار. نمبر 10 کا جملہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا نمبر آج کے نئے ویڈیو کے جو کانٹینٹ کی طرف آتے ہیں. نمبر 10 کا جملہ ہمارا، پرندہ درخت پر ہے. پرندے کے لیے عربی بتائی تھی ہم نے طائر. طائر. درخت کے لیے ہم نے بتائی تھی شجرہ. شجرہ. بتائیے جملہ. الطائر علی الشجرہ. الطائر علی الشجرہ. الطائر علی الشجرہ. تو یہ جو ہے نا ہمارا ریویژن تھا. آج کی شیٹ نمبر 4 دیکھتے ہیں ہم. یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے آج کی جو شیٹ ہے نمبر 4، اس کے اندر ہم سمجھیں گے کہ بھی یہ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ بھی میں کے لیے ہم کہتے ہیں انا، اور تم کے لیے کہیں گے اب ہم انتا. دیکھیے کہ نئی چیز پڑھ رہے ہیں آپ اس کے اندر. تم کے لیے ہم کیا پڑھیں گے؟ انتا. انتا کا مطلب تم. تم کا مطلب ہوتا ہے، تم کے لیے ہے انتا. اور میں کے لیے جو ہے نا
अना, तो अना और अंता और दो चीज़ें और हैं, वो ही एंड शी, यानी मर्द को कहेंगे कि भी हुआ वो, और औरत के लिए कहेंगे हिया। तो इसका मतलब हो गया 4 चीज़ें नई हैं इसके अंदर। और एक चीज़ तो आपने पढ़ी है ऑलरेडी, अना मैं, तुम अंता, और वो यानी मर्द, वो औरत, तो वो मर्द हुआ और वो औरत की तरफ इशारा हिया। तो 4 चीज़ें हैं, अना, अंता, हुआ, हिया। अना, अंता, हुआ और हिया। तो ये देखिएगा, तुम किधर हो, किधर की अरबी आती है आईना, किधर के लिए लफ्ज आता है अरबी में आईना। तो तुम किधर हो तो कहेंगे आईना अंत, तुम किधर हो आईना अंत, तुम किधर हो आईना अंत। नंबर 1 का जुमला है ये, तुम किधर हो आईना अंत। तो अगर कहना होगा कि भाई मैं ऑफिस में हूं तो कहेंगे अना फिल मकतब, अना फिल मकतब, अना फिल मकतब। तो मैं के लिए आता है अना, ठीक है। नंबर 2 का जो जुमला है कि खालिद किधर है, तो हम कैसे कहेंगे आईना खालिद, आईना का मतलब किधर, खालिद किधर है आईना खालिद। तो हम अगर जवाब देंगे कि वो कॉलेज के अंदर है तो हम कहेंगे हुआ, वो के लिए क्या कहेंगे हम हुआ। देखिए दोनों साइड में हमने रेड, नंबर 2 का जुमला है ये। तो खालिद किधर है, वो कॉलेज में है, तो आईना खालिद हुआ फिल कुल्लिया। कॉलेज के लिए अरबी में लफ्ज़ आता है कुल्लिया। अब नए नए अल्फाज हैं, हमने जैसा कि शुरू में कहा था कि आप लाज़िमन एक डायरी या नोटबुक बना लीजिए और उसके अंदर सारे नए अल्फाज लिख कर रखिए, ताकि जो है ना सारे अल्फाज आपके जमा हों और याद हो जाए। तो कॉलेज के लिए लफ्ज़ आता है अरबी में कुल्लिया, कुल्लिया, और वो के लिए हुआ, हुआ। तो कहेंगे वो कॉलेज के अंदर है या वो कॉलेज में है तो कहेंगे हुआ फिल कुल्लिया, हुआ फिल कुल्लिया। अब वो ऑफिस में है, वो मार्केट में है, वो जो है ना घर पर है, तो हुआ कहेंगे हम, कहेंगे कि भी वो मार्केट में, हुआ फिल सूक, वो दुकान में, हुआ फिल महल या हुआ फिल दुकान, वो जो है ना ऑफिस में, हुआ फिल मकतब, वो गाड़ी में है, हुआ फिल सैयारा। तो हुआ कहेंगे अब हर जगह पर। तो ये देखिएगा, खालिद किधर है, वो कॉलेज में है, खालिद किधर है आईना खालिद, आईना खालिद, और वो जो है ना कॉलेज में, हुआ फिल कुल्लिया। नंबर 3 का जुमला देखिए, फातिमा किधर है, तो हम कहेंगे आईना फातिमा, फातिमा किधर है तो क्या कहेंगे हम, नंबर 3 का जुमला, फातिमा किधर है आईना फातिमा, आईना फातिमा। तो अब हम देखिए कि फातिमा यहाँ पर फीमेल है, औरत है, फेमिनिन है, तो फेमिनिन के लिए वो कह रहे हैं हम, तो अब यहाँ हुआ नहीं कहेंगे, यहाँ पर हिया कहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, आईना फातिमा हिया फिल मतबख, वो किचन में है, हिया फिल मतबख। तो खालिद के बारे में पूछेंगे तो कहेंगे कि हुआ फिल मकतब के, और फातिमा के बारे में कहेंगे तो हिया फिल मतबख। तो हुआ और हिया, हुआ और हिया, मर्द के लिए हुआ, औरत के लिए हिया। लेकिन उर्दू में हम कह रहे हैं हो, वो और वो, इंग्लिश के अंदर डिफरेंट हो जाता है, ही एंड शी। तो ही इज इन द ऑफिस, शी इज इन द किचन। तो ही इज इन द ऑफिस, हुआ फिल मकतब, शी इज इन द किचन, हिया फिल मतबख। तो शी और ही और शी के लिए हुआ और हिया। तो फातिमा किधर है, हुआ फातिमा किधर है, वो किचन में है, आईना फातिमा हिया फिल मतबख। उसके बाद जो है ना हमारे सामने नंबर 4 का जुमला है, इसको समझ ले। टीचर कहाँ है कहना होगा तो क्या कैसे कहेंगे हम, अब बताइए आप, टीचर कहाँ है, हम सवाल करना होगा तो कैसे कहेंगे टीचर कहाँ है, बोलो भाई, टीचर कहाँ है तो कैसे कहेंगे हम, आईना मुदर्रिसुन नहीं, ऐनल मुदर्रिसु, अलिफ लाम लगाकर पूछना होगा आपको, क्या कहेंगे हम, ऐनल मुदर्रिसु। ऐना मुदर्रिसुन गलत है, अगर कोई कहता है कि ऐना मुदर्रिसुन तो वो गलत है। किसी से सवाल करेंगे कि किधर है टीचर तो ऐनल मुदर्रिसु, क्या जुमला है, ऐनल मुदर्रिसु, ऐना मुदर्रिसुन नहीं, ठीक है। तो टीचर कहाँ है, ऐनल मुदर्रिसु। तो कहना होगा कि वो क्लास में, तो क्या कहेंगे हम, वो क्लास में है। अगर कहना होगा तो क्लास के लिए लफ्ज हमारे पास है फिल फस्ली, तो हम कहेंगे हुआ फिल फस्ली, हुआ फिल फस्ली, ऐनल मुदर्रिसु हुआ फिल फस्ली। फस्ल का मतलब क्लासरूम। देखिए हमने एक लफ्ज पढ़ा ऊपर, वीडियो के एंड में हम इंशाल्लाह सारे अल्फाज को रिपीट करेंगे। तो ऐनल मुदर्रिसु, टीचर कहाँ है, ऐनल मुदर्रिसु, वो क्लास में है, हुआ फिल फस्ली, हुआ फिल फस्ली, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास 5 नंबर का जुमला है, चाबी कहाँ है। अब ये बताइएगा कि चाबी कहाँ है तो कैसे पूछेंगे हम,
ऐनल मिफ्ताहु। अब यहाँ अलिफ लाम लगाना होगा आपको, बगैर अलिफ लाम की नहीं कहेंगे हम। ऐनल मिफ्ताहु, ऐना मिफ्ताहु नहीं, ऐनल मिफ्ताहु, चाबी कहाँ है? तो वो बेड पर है। अब ये देखिएगा यहाँ पर वो कह रहे हैं हम, तो इंग्लिश के अंदर देखिए मर्द को कहते हैं ही, मर्द के लिए क्या कहते हैं हम? ही। और औरत के लिए कहेंगे शी। लेकिन अगर कोई मर्द भी ना हो और औरत ने भी, बल्कि बेजान चीज हो, किताब हो, कॉपी हो, कलम हो, की हो, तो ऑब्जेक्ट है ये। तो यहां पर जो है ना इट कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इट कहते हैं। तो अरबी के अंदर क्या कहते हैं पता है आपको? हुआ और हिया तो हमें पता है ना। मर्द को कहेंगे हुआ और औरत के लिए कहेंगे हिया। लेकिन किसी मर्द या औरत की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं हम, किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसके लिए इसमें इशारा वही इस्तेमाल करते हैं, हुआ और हिया। नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए भी हुआ और हिया ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन वो लफ्ज अगर मुजक्कर है तो हुआ, वही कंसिडरेशन होगा वहां पर, है ना। जैसे कि लफ्ज मिफ्ताहुन जो है ना, लफ्ज मिफ्ताह जो है ना मुजक्कर लफ्ज है, मस्क्यूलिन है, तो हुआ। सय्यारतुन फेमिनिन वर्ड है। इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम जो है ना आप लोगों को बताएंगे, जो कि नए हैं हमारे जो ऑडियंस, उनके लिए मेल और फीमेल वाला जो फॉर्मूला है अरबी में वो बताएंगे इंशाल्लाह। तो हुआ और हिया कहेंगे। तो देखिएगा अभी तक हम कह रहे थे कि भाई आइना खालिद आइना फातिमा, तो हुआ और हिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि चाबी कहाँ है? तो ये तो इंसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंसान नहीं है तब भी हुआ ही कहेंगे यहाँ पर। तो लफ्ज अगर मुजक्कर है तो कहेंगे हुआ, लफ्ज अगर कहे मुजक्कर है तो हुआ, और अगर लफ्ज मुअन्नस है तो हिया। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस? मोटी सी पहचान यह है कि उस लफ्ज के आखिर में गोलता आती है, गोलते। जैसे कि लिखते फातिमा के लफ्ज फातिमा पर, लफ्ज सैयारा पर, लफ्ज साआ पर, जो के आखिर में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये देख रहे हैं नंबर 6 के जुमले के अंदर कि भी आइना सैयारा लिखा हुआ, तो सैयारा के आखिर में गोलता नजर आ रही है आपको। तो ऐसी गोलता जिस लफ्ज के आखिर में भी, ऐसे ता मरबूता कहते हैं हम इसको, तो गोलता जिस लफ्ज के आखिर में नजर आती है वो लफ्ज अरबी में मुअन्नस होता है। तो जो लफ्ज अरबी में मुअन्नस होगा उसके लिए कहेंगे हिया। जो लफ्ज अरबी में मुजक्कर होगा, जैसे कि लफ्ज मिफ्ताह, ऊपर देख रहे हैं नंबर 5 के अंदर लफ्ज मिफ्ताह, तो लफ्ज मिफ्ताह के आखिर में ये गोलता नहीं है। तो जिस लफ्ज के आखिर में आपको गोलता नजर नहीं आ रही है, समझे कि वो लफ्ज मुजक्कर है। और जिस लफ्ज के आखिर में गोलता नजर आ रही है वो समझे कि हम लफ्ज मुअन्नस है। जो जिस लफ्ज के आखिर में गोलता नजर आ रही है उसको क्या समझेंगे हम कि वो लफ्ज अरबी में मुअन्नस है, और उसके हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे। तो हम कहेंगे हिया, तो हुआ और हिया। तो अब देखें कि नंबर 5 का जुमला हमारे पास है कि चाबी कहाँ है? ऐनल मिफ्ताहु, ऐनल मिफ्ताहु। तो हम कहेंगे कि वो बेड पर है, वो बेड पर है। तो बेड की अरबी आती है शरीर, बेड की अरबी आती है शरीर। तो हम कहेंगे हुआ अलस शरीर, हुआ अलस शरीर। उसके बाद जो है ना चलते हैं नंबर 6 की तरफ, जुमला हमारा कि गाड़ी कहाँ है? तो गाड़ी कहाँ है तो क्या कहेंगे हम? ऐनस सय्यारतु, ऐनस सय्यारतु। गाड़ी कहाँ है तो कहेंगे ऐनस सय्यारतु, अलिफ लाम के साथ कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ कहना होगा कि भी वो रोड पर है, तो रोड की अरबी आती है लफ्ज शारे। रोड के लिए क्या लफ्ज आती है? लफ्ज आता है शारे। तो यहाँ पर ऐनस सय्यारतु, गाड़ी कहाँ है तो कहना होगा कि इट इज ऑन द रोड। तो अब हुआ कहेंगे कि हिया कहेंगे? हिया कहेंगे यहाँ पर। तो हम कहेंगे हिया अलश शारे। क्या कहेंगे हम? हिया अलश शारे। तो चूंकि लफ्ज सय्यारा मुअन्नस है, फीमेल है, इंशाल्लाह बाद के वीडियो में मेल और फीमेल वाला चक्कर आपको समझाएंगे मजीद। तो अब ये समझ लें कि जिस लफ्ज के आखिर में गोलता नजर आ रही है वो लफ्ज अरबी में मुअन्नस है, फेमिनिन है, फीमेल है, ये समझे आप। तो उसके लिए हिया कहेंगे हम। तो ऐन सय्यारा हिया अलश शारे, कहां पर है? वो रोड पर है। तो क्या कहेंगे? हिया अलश शारे, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 का जुमला हमारे सामने है, उसको समझते हैं, और 2-3 जुमले और हमारे पास। घड़ी किधर है? घड़ी के लिए लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, साअतुन। घड़ी के लिए लफ्ज क्या पढ़ा है हमने? साआ। तो घड़ी किधर है तो कैसे पूछेंगे हम? ऐन साअतु, ऐन साअतु, अलिफ लाम के साथ, ऐन साअतुन नहीं, ऐन साअतु, ऐन अस्साअतु, ऐन अस्साअतु मिलाकर पढ़ेंगे। ऐन साअतु, घड़ी किधर है तो कहेंगे कि भी वो दीवार पर है। अब यहाँ पर इट इज ऑन द वॉल, इट्स ऑन द वॉल। वेयर इज द क्लॉक? इट्स ऑन द वॉल। अब यहाँ पर इट कह रहे हैं हम, इट इज, हम ये ही और शी नहीं कह रहे, इट कह रहे हैं, बेजान चीज है, तब भी हुआ और हिया ही इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे? ऐन साअतु, घड़ी किधर है तो हम कहेंगे वो दीवार पर है। तो दीवार के लिए लफ्ज है जिदार। दीवार के लिए क्या लफ्ज है? जिदार। तो हम जवाब कैसे देंगे? हिया अलल जिदारी, हिया अलल जिदारी। ऐन साअतु
ही अलल जिदारी, यानी साअतु ही अलल जिदारी, ये देखिएगा। और नंबर 8 का जुमला हमारे पास है, उसको समझते हैं, 2 जुमले उसके बाद और बाकी है, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह वीडियो खत्म होगा। नंबर 8 का जुमला है कि बैग किधर है, बैग किधर है। तो बैग के लिए लफ्ज पढ़ाया आपने, क्या आया याद है आपको? हकीबा कहते हैं और शंता भी कहते हैं, 2 लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में। क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? एक हकीबा जो कि बुक 1 में पढ़ा हमने दुरूसुल लुगा के, और लफ्ज शंततुन भी इस्तेमाल होता है, शंता शंता ता के साथ में। तो ऐनल हकीबा या ऐन शंता, ऐनल हकीबा या ऐन शंता। तो अपना बैग किधर है? तो ऐनल हकीबा, ऐनल हकीबा। तो अब हम कहेंगे कि वो टेबल पर है, वो इट इज ऑन द टेबल, इट्स ऑन द टेबल, वो टेबल पर है। तो अब यहां पर क्या कहेंगे वो के लिए? हुआ कि हिया? हिया कहेंगे। क्या रीजन है कि हम हिया कह रहे हैं? यहां पर लफ्ज अल हकीबा के आखिर में गोलता नजर आ रही है हमें, तो जिस लफ्ज के आखिर में गोलता नजर आए वो लफ्ज जो है ना अरबी में फेमिनिन होता है, मुअन्नस होता है, फीमेल होता है। तो लिहाजा फीमेल के लिए हम हिया इस्तेमाल करते हैं, मर्द के लिए मेल के लिए हुआ और फीमेल के लिए हिया, है ना। तो ही, शी और इट, तीनों चीजें कवर हो रही है इसमें। तो टेबल के लिए क्या लफ्ज है? ताविला। एक लफ्ज आता है मकतब। टेबल के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मकतब और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ताविला। दोनों लफ्ज करेक्ट है। तो आप चाहे तो ही अल ताविला कहें या फिर क्या कहें, हिया अलल मकतब, दोनों करेक्ट है। तो हमने यहां लिखा हुआ ही अल ताविला, ही अल ताविलती। अब नंबर 9 का जुमला है हमारे पास कि परिंदा किधर है। परिंदे के लिए एक लफ्ज पढ़ा है हमने ताइर, आपको याद है परिंदे को क्या कहते हैं? ताइर। हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है ना, ये बेसिक अरबी के जो प्रीवियस वीडियो उसके अंदर पढ़ा हुआ है। तो परिंदे के लिए लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है ताइर, और दरख्त के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है हमने? शजरा, शजरा। तो कहेंगे कि भाई ऐन ताइरु, परिंदा किधर है? ऐन ताइरु, परिंदा किधर है? तो कहेंगे कि वो दरख्त पर है, इट इज ऑन दी, इट्स ऑन दी ट्री, इट्स ऑन द ट्री। अब ये देखिए कि इट कह रहे हैं हम यहां पर, अब यहां पर ही भी नहीं कह रहे और शी भी नहीं कह रहे कि परिंदा जो है ना मर्द, न तो मर्द है ना तो औरत है, नॉन ह्यूमन है। तो नॉन ह्यूमन के लिए भी हुआ और हिया। इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमन बीइंग के लिए भी हुआ और हिया, और नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए भी हुआ और हिया। बस फर्क ये रखने का है कि मेल के लिए हुआ और फीमेल के लिए हिया, ठीक है। तो जो लफ्ज मेल हो उसको हुआ, जो लफ्ज फीमेल हो उसको हिया। तो हम कहेंगे ऐन ताइरु हुआ अल शजरा, हुआ अल शजरा। शजरा का मतलब दरख्त। ये ना सारे अल्फाज याद रखना चाहिए हमें। और इसके बाद जो है ना आखिरी जुमला हमारा जो कि नंबर 10 है, मुअज्जिन किधर है? मुअज्जिन किधर है? तो कैसे पूछेंगे मुअज्जिन किधर है? नहीं नहीं, मुअज्जिन ना, इमाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, मुअज्जिन पूछ रहा हूं। ऐनल मुअज्जिनु, ऐनल मुअज्जिनु, ऐनल, मैं इमाम किधर है नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ऐनल मुअज्जिन किधर है। तो हम क्या पूछेंगे? ऐनल मुअज्जिनु, ऐनल मुअज्जिनु, अलिफ लाम के साथ कहेंगे, ऐन मुअज्जिनुन नहीं, जैसे कि आपने स्टार्ट में मिस्टेक की है। ऐनल मुअज्जिनु, अब ये कहना होगा कि वो कमरे में, तो कैसे कहेंगे हम? हुआ अपना वो कमरे में है, ही इज। ऐनल मुअज्जिन, वेयर इज द मुअज्जिन? ही इज इन द रूम, हुआ फिल गुरफती। अब यहाँ पर वो जो है ना देखिएगा यहाँ पर मर्द के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुअज्जिन चूंकि मर्द है, मेल है, तो उसके लिए हुआ कहेंगे हम। तो अब कहेंगे कि हुआ फिल गुरफती। तो रूम के लिए लफ्ज आता है अरबी में गुरफतुन। रूम के लिए क्या लफ्ज आता है अरबी में? गुरफतुन आता है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है ना हमने देखिएगा यहाँ पर हाईलाइट किया है। किधर के लिए लफ्ज आता है? बोलो, किधर के लिए लफ्ज आता है? ऐना। अंता, मर्द, मर्द, तुम, मर्द के लिए कहेंगे अंता। तो मैं की अरबी क्या कहेंगे? क्या खत्म करते वीडियो को? मैं, अना, तुम, अंता, वो, हुआ मेल, ही यानी, और शी, हिया, ही, हुआ, ही, हुआ, और शी, हिया, और इट, दोनों भी, इट के लिए भी हुआ और हिया, है ना। लफ्ज देखना है, नॉन ह्यूमन का लफ्ज देखना है, मेल है तो हुआ, फीमेल है तो हिया, है ना। तो हमने बताया। अब ये देखिएगा यहाँ पर हमने मेल और फीमेल कैसे पहचानेंगे कोई लफ्ज मुअन्नस है? लफ्ज के आखिर में ढूंढेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमारा, वो तवज्जो करें इस पर कि लफ्ज फातिमा, देखिए हमने एक फोटो दिया है फीमेल का, उसके सामने लिखा हुआ है, एक लफ्ज फातिमा लिखा है, एक लफ्ज सैयारा लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि फातिमा के आखिर में गोलता है, इसी तरह सैयारा के आखिर में गोलता नजर आ रही है, तामरबूता कहते हैं इसको।
تو ہر وہ اب دیکھیے فاطمہ جو ہے نا کسی انسان کا نام ہے. سیارہ لفظ جب جو ہے جو کہ کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتا, بے جان کے لیے, نان ہیومن کے لیے. تو لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے جاندار ہے یا بے جان ہے, ہیومن ہے نان ہیومن ہے. جس لفظ کے اخیر میں گولتا آ رہی وہ لفظ عربی میں مؤنث ہوتا ہے. تو لفظ فاطمہ مؤنث, اسی طرح سیارہ بھی مؤنث. تو ہم دونوں کے لیے ہی یہ کہیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ ہم ہیا. تو یہ دیکھیے گا ہمارا جو ہے نا یہاں پر ویڈیو ختم ہوتا ہے, اور سارے جو الفاظ ہم نے اس میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ایک مرتبہ. ایک لفظ پڑھا ہم نے آفس کے لیے پڑھا ہوا ہے, لفظ بولو آفس کے لیے لفظ فوراً. مکتب. آفس کے لیے لفظ ہے مکتب. کالج کے لیے لفظ کلیہ. یہ سارے الفاظ ہم نے اس میں پڑھے ہوئے ہیں. آپ لوگ بھی جو ہے نا اس پر توجہ کیجئے اور ان لفظوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے الفاظ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے, تو کلیہ. کالج کے لیے لفظ پڑھا ہم نے کلیہ. ویری گڈ. کچن کے لیے لفظ بولو مطبخ. مطبخ. کلاس روم کے لیے لفظ بولو فصل. فصل ہے نا. بیڈ کے لیے لفظ سریر. روڈ شارع یا طریق, دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم؟ ہاں, روڈ پر مت بیٹھو تو کیسے کہیں گے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے بک 2 کے اندر لا تجلس فی الطریق. کیا پڑھا ہے ہم نے؟ لا تجلس فی الطریق, راستے میں مت بیٹھو. تو دیکھیے گا تو روڈ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, لفظ شارع بھی اور طریق بھی. ہم کہیں گے کہ گاڑی روڈ پر ہے تو کہیں گے السیارہ علی الشارع. السیارہ علی الشارع. کہیں گے کہ میں راستے میں ہوں, آئی ایم آن دا وے. آئی ایم آن دا وے, میں راستے میں ہوں. تو کیا کہیں گے ہم؟ انا فی الطریق. انا فی الشارع نہیں, انا فی الشارع کا مطلب ہوگا کہ میں آئی ایم لائنگ آن دا روڈ. ٹھیک ہے, انا فی الشارع کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھو یہی فرق میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. شارع اور طریق میں کیا فرق ہے؟ ہم گاڑی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھی گاڑی روڈ پر ہے. گاڑی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ گاڑی روڈ پر ہے. لیکن میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں راستے میں ہوں, آئی ایم آن دا وے. تو روڈ اور وہ وے 2 لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟ 2. ایک روڈ ہے اور ایک وے ہے. تو جب ہمیں کہنا ہوگا کہ the car is on the road, the car is on the road, تو ہم کہیں گے السیارۃ علی الشارع. اب یہاں پر علی الشارع کہیں گے, لیکن کہیں گے کہ آئی ایم آن دا وے, میں راستے میں ہوں. تو یہاں پر شارع نہیں کہیں گے ہم. کیا کہیں گے؟ انا فی الطریق. کیا کہیں گے ہم؟ انا فی الطریق. انا فی الطریق. بہرحال یہ دونوں لفظوں کو یاد رکھو اچھی طرح. دونوں جملے یاد رکھنے کا بہتر طریقہ ہے کہ جملوں کو رٹ ڈالو 10-20 مرتبہ. تو السیارۃ علی الشارع, السیارۃ علی الشارع, اور انا فی الطریق, آئی ایم آن دا وے. the car is on the road, I am on the way. ٹھیک ہے. اچھا دیوار کے لیے لفظ بتایا تھا ہم نے جی, جدارون. دیوار کے لیے لفظ ہے جدار. قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہوا سورۃ الکہف میں, اس سے پہلے بتایا ہم نے. ٹیبل کے لیے لفظ مکتب, اور ایک دوسرا لفظ طاولہ. طاولہ طاولہ طاولہ. درخت کے لیے لفظ شجرہ. شجرہ تا مربوطہ کے ساتھ. شجرون جمع ہو جائے گی, شجراتن کی جمع شجرون. شجراتن سنگولر واحد, شجراتن درخت. ٹھیک ہے, قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا. اس کے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا پریویس ویڈیو. کمرے کے لیے کیا لفظ ہے؟ غرفتن. گھر کے لیے کیا لفظ ہے؟ بیت. گھر کے لیے لفظ ہے بیت. چابی کے لیے مفتاح. بیڈ کے لیے لفظ سریر. تو یہ سارے کچن کے لیے. تو یہ سارے الفاظ یاد کرنا ہے انشاءاللہ. اب جو ہے نا جو نیکسٹ ویڈیو ہوگا اس کے اندر ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ وہ جو ہے نا اس کا ریویژن کریں گے اور سارے الفاظ آپ کو یاد کروائیں گے انشاءاللہ. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اگر آپ جو ہے نا ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو لازماً ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے, تاکہ جو ہے نا بیل آئیکن پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہتے ہیں, آپ کو انٹیمیشن ملتا ہے, آپ کو خبر مل جائے گی کہ ہم نے کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے. تو جیسا کہ آپ یہ سامنے ہمارے پیج پر دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن, تو دونوں سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں لازماً. لائک کریں, شیئر کریں دوسروں کے ساتھ میں, تاکہ سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.